Let's learn the names and sounds of different birds. Robin, cardinal, quail, crane, Canada goose, frigate bird, siskin, magpie, Friends, how are you? I'm your English teacher. I'm fine, and I hope you are also fine. I will start your new lesson, English A, class 6. I will start the poem. Poem name is Birds. Do you know, students, what is birds? Birds are specific creature of God. We can't include in the human beings, but it is a specific creature of God. Birds are very specific. Why? Because a special subject is only for birds, and its name is ornithology. Ornithology is a Latin word. It means bird science. It is a special subject in which we know all the information about the birds. Students, I will tell you the names of the birds. First is Hopi. Hopi means hudhud. Ostrich. Ostrich means shutarmurag. Dove. Dove means fakhta. Seagull. Bagla. Duck. Batakh. Swan. Hans. Nightingale. Bulbul. Crow. Kawa. Eagle. Ukab. Falcon. Shikra. Pigeon. Kabutar. Partridge. Kabutar. Titar. Partridge, तीतर, swallow, अबीब, रावण, पहाड़ी कवा, आउल, उल्लू, मैगपी, चिड़िया, स्पैरो, चिड़िया। स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो थे ये बर्ड्स के नेम थे। आपको पता है दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड बर्ड्स की कितनी काइंड्स हैं? 10,000 काइंड्स है बर्ड्स की। लेकिन ये जो मैंने आपको बताई हैं ये इनमें से बहुत थोड़ी सी हैं। आज हम इसकी न्यू स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे ताकि रीडिंग स्टार्ट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट, सॉ, देखा, रैपिडली, तेज़ी से हरकत करती हुई। डेंजर, खतरा, ऑफर्ड, पेशकश, फीदर, पर, फ्राइटेंड, खौफजदा, ग्लांस, झलक, बीटल, स्याह पुष्ट वाला कीड़ा। रॉड, कितार में लगी हुई। ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरे। हरीड, जल्दी या फौरन। वॉल, दीवार। ग्रास, घास। कॉशियस, एहतियात। स्टिर्ड, खिलाया या हरकत दी। लुक, देखा या दिखाई दिया। बीड्स, मोती। एंगलवॉर्म, ज़मीनी कीड़ा। नाउ आई विल स्टार्ट योर इंग्लिश पोएम बर्ड्स। लेट्स रीड। आओ पढ़ें। A bird came down the walk. He did not know I saw. He bit an angleworm in halves and ate the fellow raw. Students, do you notice in the second and fourth line we know the rhyming words saw and raw. I will circle both these words. These are called rhyming words. This poem Birds written by an American poetess and its name is Emily Dickinson. Please repeat this name once again, and it is called Emily Dickinson. It is an American poetess. She was born in America in the city Massachusetts in 10th century in 10th December 1830.
She is recognized as the most important American poetess of 19th century. Emily Dickinson died on 15th May 1886. Students, this poem is very, very interesting. Now I will tell you the theme of this poem. Theme is, the poem carries a general theme on how a simple everyday event can explain the beauty of nature. In this poem, the poetess described the creature of God. It is called bird. And through this bird, he also describes the beauty of nature and also depicts the characteristics of this bird with human beings. Why? Because she also says that the bird is civilized like the all human beings. A bird came down the walk. एक परिंदा उतरते हुए नीचे आया. He did not know, वो नहीं जानता था. I saw, कि मैं उसे देख रही हूँ. यहाँ पे पोइट अपने आप से मुखातिब होकर कह रही है कि मैं उसे देख रही थी. He bit an angleworm in halves. एंगलवॉर्म कहते हैं ज़मीनी कीड़े को. उसने ज़मीनी कीड़े को आधा करके उसे खाने की कोशिश की. एंड एट द फेलो रॉ, और उसे खा लिया. रॉ कहते हैं कच्ची हालत में. एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू. ड्यू कहते हैं शबनम के कतरों को, और ड्रैंक पीना. और फिर उसने शबनम के कतरों को पिया. फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास. कन्वीनियंट मीन्स बहुत ईजी. ग्रास घास को कहते हैं. बहुत आसानी से घास से उसने कुछ शबनम के कतरों को पिया. एंड देन हॉप साइड वाइज थ्रू द वॉल टू लेट अ बिटल पास. और फिर हॉप मीन्स मूव वेरी स्लाइटली लाइक अ स्पैरो. वो बहुत उछलते हुए आसानी के साथ दीवार के साथ लग गया, जैसे कि बिटल पास. बिटल कहते हैं स्यापुष्ट वाले कीड़े को. ही ग्लांस्ड विद रैपिड आइज. उसकी आंखें तेज़ी से हरकत कर रही थी. डैट हरिड ऑल अब्रॉड, और इधर उधर देख रहा था. अब्रॉड दूर तक देख रहा था. दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स आई थॉट. वो उसकी आंखें खौफनाक मोतियों की तरह दिखाई दे रही थी. आई थॉट, मैंने सोचा. ही स्टेड हिज वेलवेट हेड. यहाँ पोइट ने पर्सोनीफाई किया है. रेड वेलवेट जो होता है, आपको पता है कि वो कितना नरम होता है, उसके ऊपर हाथ लगाएं तो. यहाँ जो इसका हेड है पैरट का, ये भी रेड वेलवेट की तरह दिखाई दे रहा है. उसने इसको इसके साथ उसने सिमिली यहाँ पे बयान की है. उसने हिलाया रेड वेलवेट यानी अपने सुरख सर को. लाइक वन इन डेंजर, कुछ खौफ खाते हुए. आई ऑफर्ड हिम अ क्रम. क्रम कहते हैं ब्रेड के टुकड़ों को अगर बारीक बारीक कर दिए जाए तो वो क्रम बन जाते हैं. यहाँ पॉइंट खुद को बताते हुए कह रही है अपने आप को कि मैंने उसको क्रम ऑफ़र की है. एंड ही एनरोल्ड हिज फीदर, और उसने अपने परों को रोल कर दिया. एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, और मूव करते हुए वो पीछे की तरफ अपने घर की तरफ चला गया. स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. ये वही है जो मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग में करवाया. आपने यहाँ से इसके वर्ड्स मीनिंग खुद करने हैं.